Welcome students. Today I'll be discussing about the stakeholders applications and approaches to market sizing. We have already understood what market sizing is, what are the various concepts that need to be well understood before we go into market sizing or before we adopt any approach, what are the process or the steps that are involved in market sizing. Here we need to understand in this session who are the stakeholders who are involved in market sizing, the applications of market sizing as in where we basically use, and the approaches along with examples to explain the approaches of the market sizing. Now the question comes, why market sizing is important. जब मार्केट साइजिंग हम करने चलते हैं, हम पोटेंशियल कस्टमर्स का इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, बी इट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, बी इट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें पता लगाना कि इम्पॉर्टेंट क्यों है, व्हाई इज़ इट सिग्निफिकेंट. सिग्निफिकेंस ये है कि इट हेल्प्स इन मेकिंग एक्यूरेट एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ऑन द स्केल ऑफ द इन्वेस्टमेंट. जो भी हम इन्वेस्टमेंट लगाने जा रहे हैं, जो भी हम रुपए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं अपनी कंपनी में, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट्स और द चैनल्स या प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एक्सपेंशन, एनीथिंग. तो हम चाहेंगे कि हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट हो, जो हमें रिटर्न मिले, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी गुड. It should not lead to any kind of losses. It helps in making accurate and informed decisions. उसके अलावा मार्केट साइजिंग हमको वो फैक्टर्स भी पता लगाने में अपनी मार्केट के बारे में हेल्प करता है जो कि कंपेटिटर्स के पास इंफॉर्मेशन होती है. हो सकता है एज एन इंडिविजुअल, एज अ मार्केटर हमारे पास इंफॉर्मेशन ना हो. Then comes entrepreneurs and organizations can even use market sizing to estimate how much profit they could potentially earn from new business. वो फ्यूचर के लिए फोरकास्ट करते हैं कि अपने नए बिजनेस से या प्रोडक्ट से या जो सर्विस ऑफर करने जा रहे हैं उससे वो कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं फ्यूचर में. Plus, this helps decision makers to decide whether they should invest it or not. फॉर इंस्टेंस, अगर वो कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या मार्केट है जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड दे ट्राई टू फाइंड आउट थ्रू मार्केट साइजिंग दैट पर्टिकुलर segment is not earning good or not reaping good profits, what they can do is they can stop investing in that market and they can stop with that product line क्योंकि वो losses incur या bear कर रही है. They can use the same amount investing in some other product or business dimensions. Market sizing also helps to estimate the right number of people required rather than feeling the way to test your own new market. हम right number ऑफ पीपल रिक्वायर्ड इन द राइट सेगमेंट, कितने सेल्स फोर्स की रिक्वायरमेंट है जो कि हमारे चैनल में या हमारे प्रोडक्ट को आगे प्रमोट करेंगे, वो भी मार्केट साइजिंग के थ्रू पता चलता है कि हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स कितने हैं. उसी के बेसिस पे हमारी जितनी भी हायरिंग होगी सेल्स फोर्स की, वो हमें नंबर्स हेल्प करते हैं पता लगाने में. देन कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट साइजिंग स्टेक होल्डर्स. स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? स्टेक होल्डर्स आर बेसिकली द पीपल हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द बिजनेस. स्टेक होल्डर्स कैसे हेल्प करते हैं? दे हेल्प इन गैदरिंग द मार्केट रिक्वायरमेंट विद स्टेक होल्डर्स. Research has become a crucial part of market success. As already said, they are directly or indirectly involved in the business. These stakeholders offer a winning product or service. Firm needs to understand how the target market thinks, what those potential customers are expecting, what benefits or solutions can be offered to them. This is through stakeholders. As a marketer, we can come to know about our target market. Next is they help in identifying the needs and also help in determining how those challenges that have not been addressed can be addressed through these stakeholders, because they help in identifying the needs, they help in determining those problems that can be solved.
This analysis also helped impact the positioning strategy of the lead generated in market campaigns. As already explained in the previous sessions, market एनालिटिक्स हम करते भी एक वन ऑफ द रीजंस हैं कि जब हम मार्केटिंग कैंपेन्स कर रहे होते हैं उसमें हमें कितना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, एंड दे हेल्प इन बेटर मैच बिटवीन द नीड्स एंड द सॉल्यूशंस दैट आर बीइंग प्रेजेंटेड. अगर ज़्यादा गैप होता है दोनों के बीच में, मिसमैच होता है, तो वी कैन ट्राई टू रिड्यूस दोज गैप्स by offering the products, by offering the services according to the needs of the customers. Then comes stakeholders for market sizing, और वो किस तरीके से हेल्प करते हैं हमारे फर्म को या एज एन इंडस्ट्री को. मार्केटिंग डिपार्टमेंट में वो हेल्प करते हैं इन्वेस्टिगेट न्यू मार्केट एंड कैलकुलेट मार्केट शेयर. हमें न्यू मार्केट आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, प्लस हम थ्रू द इंफॉर्मेशन दैट इज रिट्रीव्ड फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स वी कैन कैलकुलेट द मार्केट शेयर of that particular product, of that particular company. Channel partners, number of units to move in particular channel. एक particular channel में हमें कितने units देने हैं. अगर कोई हमारा channel अच्छा perform नहीं कर रहा है, we can cut down with that channel, we can divest our resources from that channel to the channel which is performing better. तो channel partners के through भी हमें पता चलता है. Then financial service, वेंचर कैपिटलिस्ट हमें पता लगाते हैं कि लार्ज एंड ग्रोइंग मार्केट कैसे है. जो अच्छी मार्केट होगी उसी के ऊपर हम इन्वेस्ट करेंगे. जो अच्छी मार्केट्स नहीं होंगी वी विल नॉट बी इन्वेस्टिंग इन दोज मार्केट. वाई टू वेस्ट रिसोर्सेज, बिकॉज द फाइनेंसेस विच इज़ रिगार्डेड एज द ब्लड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स इन ग्रोइंग इन द फ्यूचर. वही फाइनेंसेस की हमें फ्यूचर में भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है. Then comes the operation department. Operation department is how many units to be made and how many people are to be hired. Operations department भी हमको help करता है कि कितने units हमें manufacture करने हैं, कितने लोग हमें hire करने हैं. ये stakeholders का role होता है market sizing में. Then comes the application. कहाँ कहाँ यूज़ होती है मार्केट साइजिंग, हम किन किन एरियाज़ में यूज़ कर सकते हैं मार्केट साइजिंग को, इसका एप्लीकेशन पता लगाते हैं. There are n number of places where market sizing can be used, right from the investment to the distribution channel कि हमें कितने लोग चाहिए, क्या adoption rate है, सारी चीज़ों का. स्टार्टिंग फ्रॉम मार्केट इन्वेस्टमेंट, अगर हमें पता चल जाता है जिस भी मार्केट में हमने पैसा लगाया है वो हमको अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, तब तो वील मूव अहेड. अगर हमें पता चल जाए कि वो हमें लॉस दे रही है वो मार्केट या वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या वो पर्टिकुलर एरिया या सेगमेंट, तो वी कैन बेसिकली डाइवेस्ट आवर रिसोर्सेज फ्रॉम दैट एंड विल फॉलो द ट्रेंड दैट इज़ बीइंग फॉलोड. मार्केट सेगमेंट, जब हम मार्केट साइजिंग करने चलते हैं तो जब हम अपनी मार्केट को प्रॉपर्ली डिफाइन कर रहे होते हैं तो उसमें हम सेगमेंट्स लेते हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स लेते हैं, सब सेगमेंट्स लेते हैं, उसके बेसिस पे हम मार्केट साइजिंग करते हैं. प्लस हमें ये भी पता चल जाता है कि कौन सी सेगमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है. जब हमें डेटा मिलता है थ्रू एनी ऑफ द अप्रोचेस दैट वी फॉलो, दैट कैन बी फ्रॉम द डिमांड साइड, दैट कैन बी फ्रॉम द सप्लाई साइड, प्लस हमें ये भी पता चल जाता है कि पोटेंशियलिटी क्या है उस पर्टिकुलर सेगमेंट की. देन कम्स द मार्केट शेयर. मार्केट साइज़ के थ्रू ही हम यूजुअली मार्केट शेयर या कैलकुलेट कर पाते हैं. एडॉप्शन रेट क्या है हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जिसके लिए हम मार्केट साइजिंग करने जा रहे हैं, क्या वो एडॉप्ट हो रहा है, क्या उस रेट पे एडॉप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या जो फॉलो कर रहा है जो भी स्पीड है, जो पेस है, ऐसा तो नहीं हम अपने फाइनेंसेस इन्वेस्ट करते जा रहे हैं और एडॉप्शन उतना अच्छा नहीं है. देन कम्स द मार्केट ट्रेंड्स. क्या जो ट्रेंड्स हैं, जो पाथ फॉलो हो रहा है, इज़ इट अकॉर्डिंग टू व्हाट द कंपेटिटर्स आर डूइंग. इफ़ इट्स नॉट देन वील ट्राई टू डेविएट आवर रिसोर्सेज. सेल्स को फोकास्ट करने में मार्केट साइजिंग बहुत हेल्प करता है, क्योंकि अगर हम सेल्स फोकास्ट नहीं करते हैं
तो हम फ्यूचर के इन्फॉर्म्ड डिसीजंस या एक्यूरेट डिसीजंस नहीं ले सकते। सेल्स फोर्स साइजिंग, कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है हमें अपने पर्टिकुलर फर्म में, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, पर्टिकुलर कंपनी में, वो भी हम मार्केट साइजिंग के थ्रू पता लगा सकते हैं। जब हमें अपने पोटेंशियल कस्टमर्स या पोटेंशियल सेल्स पता चल जाती है, कितने लोग उस टारगेट को फुलफिल कर पाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, कौन सा चैनल हमारा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किस चैनल के थ्रू हमें ज़्यादा रेवेन्यूज़ जनरेट हो रहे हैं। ये सारे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे मार्केट साइजिंग के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन पता चलती है, प्लस हमारी मार्केट इन एप्लीकेशन बेस पे बेसिकली हम ज़्यादा एक्यूरेट एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाते हैं, प्लस वी आर एबल टू डिलिनेट आवर पाथ फॉर द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस दैट आर टू बी मेड बेसिकली। Now comes approaches to calculate market size. There are basically the two approaches that we would be considering while calculating the market size. There can be many, but usually the two most considered ones are the top down approach and the bottom up approach. The top down approach also known as chain ratio method. अगर आप ये ग्राफ देखें, इसमें टॉप डाउन यानी कि ऊपर से नीचे जा रहा है हमारा एरो। हमें यहाँ पे टोटल मार्केट साइज पता होता है, हम फिर कुछ अजम्पशंस के बेसिस पे या स्टैटिस्टिक्स जो अवेलेबल होती है उसको हम डिवाइड करते हैं या सेगमेंट करते हैं, फिर हम एड्रेसेबल मार्केट को आइडेंटिफाई करते हैं। इसके थ्रू हम, also known as chain ratio method, it estimates the addressable market from above. ऊपर से हम पता लगाते हैं figure market size starting with a broad market size figure that is an existing market research report. हमें जो existing market research reports हैं या companies है, for instance जैसे हमने आपको पिछले sessions में भी बताया, नीलसन हो गए, इप्सॉस हो गए, गार्टनर्स हो गए, दे आर कॉन्टिन्यूसली इनटू इट एंड दे कैलकुलेट इट। तो हम उनके नंबर्स को ले करके फिर हम डिफरेंट सेगमेंट्स में हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं। हम वी यूज़ सर्टन अजम्पशंस, वी यूज़ सर्टन स्टैटिस्टिक्स एंड देन वी ट्राई टू फाइंड आउट एड्रेसेबल मार्केट। अजम्पशंस कैन बी वेरीफाइड यूजिंग एग्जिस्टिंग डेटा और स्टैटिस्टिक्स। जब हम टॉप डाउन अप्रोच यूज़ कर रहे हैं तो हम जो भी अजम्पशंस ले रहे होते हैं एग्जिस्टिंग डेटा की, जिसके बेसिस पे हम अपने मार्केट को सेगमेंट कर रहे होते हैं, तो हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। एंड अदर्स जो नहीं होते हैं हमें इंफॉर्मेशन, हम यहाँ पे एडुकेटेड गेस एस्टिमेट्स लेते हैं जो कि हमारे इंट्यूशंस होते हैं, प्रेडिक्शंस होते हैं बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ द रिसर्चर और द analyst. It is considered as less robust technology. It is the fastest and the cheap way of market sizing. ये थोड़ा सा easy होता है, fast होता है, quick होता है, क्योंकि हमें already एक addressable market जो होती है वो पता चल चुकी होती है। Then comes the bottom up approach. This is one of the another approach, also known as counting noses. और यहाँ से हम अगर डायग्राम देखें या जो ये पिरामिड है हमारा, इसमें हमने जितने भी डिफरेंट सेगमेंट्स हैं इनको हम आइडेंटिफाई करते हैं पहले, फिर हम उसको ऐड अप करके सेगमेंट साइजेस को पता लगाते हैं एंड देन वी गो अहेड अप टू एड्रेसेबल मार्केट। हम यहाँ से बॉटम अप अप्रोच बेसिकली हम यहाँ पे दो चीज़ें और फॉलो कर सकते हैं। हम सप्लायर पर्सपेक्टिव दैट इज़ फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स डिटेल्स के थ्रू भी पता लगा सकते हैं, और फ्रॉम द डिमांड साइड दैट इज़ फ्रॉम द बेसिकली दी कस्टमर्स या जो हमारी पॉपुलेशन होती है उसकी इंफॉर्मेशन के थ्रू भी हम पता लगा सकते हैं। इट एस्टिमेट्स द एड्रेसेबल मार्केट फ्रॉम बिलो बाय समिंग अप द नोन डेटा फ्रॉम द मार्केट पार्टिसिपेंट्स। हमने ये चीज़ बोली है, यहाँ पे जो भी हमें नोन डेटा होता है, हमें फॉर इंस्टेंस अपनी पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन है, अगर हम डिमांड साइड के साथ तरफ से जाते हैं, अगर हम सप्लाई साइड की तरफ से जाते हैं फॉर इंस्टेंस, तो हमें मैन्युफैक्चरर्स का डेटा अवेलेबल होता है, हम उसको देख लेते हैं। कितने चैनल्स हैं उसकी तरफ से जो हमें सेल्स मिल रही होती हैं, सेल्स रिकॉर्ड्स होते हैं, हम उसको देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरर्स ने कितने प्रोडक्ट्स सेल किए हैं उसको ऐड अप करते हैं, तब हम
उसको सबको एक्यूमुलेट करके जब हम ऐड करते करते सेगमेंट साइज हम ऐड करके ऊपर जाते हैं, देन वी गेट दिस एड्रेसेबल मार्केट नोन एज बॉटम अप अप्रोच. दिस अप्रोच इज ऑफन मोर कंजर्वेटिव एंड रोबस्ट since it takes into account the capacity limitations of the industry and basically जो बॉटम अप अप्रोच होता है यहाँ पे हम प्राइमरी रिसर्च के यूज़ ज़्यादा करते हैं, क्योंकि अगर हम पिछली स्लाइड में देखें जब हम टॉप डाउन अप्रोच कर रहे थे तो हम यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा के बेसिस पे ही हम मार्केट साइज को कैलकुलेट कर रहे थे. बट वेयर एज दिस इज़ मोर एक्यूरेट बट कॉस्टली टू कैरी आउट द बॉटम अप अप्रोच, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं. अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि हम यहाँ पे गेस एस्टिमेट करते हैं. अब गेस एस्टिमेट होता क्या है, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वाइल साइजिंग द मार्केट. गेस एस्टिमेट, गेसिंग एंड एस्टिमेशन मेथड. गेसेस देते हैं कि हम बताते हैं क्या ये हो सकता है, दिस कैन ऑल्सो बी द पॉसिबिलिटी. पॉपुलेशन को हम अज्यूम करते हैं, जैसे हमने कहा कि ज़रूरी नहीं है, एक घर में वॉशिंग मशीन्स हैं तो जॉइंट फैमिली है तो एक वॉशिंग मशीन हो सकती है. जॉइंट फैमिली है, अगर बड़ी जॉइंट फैमिली है तो 2-3 वॉशिंग मशीन्स हो सकती हैं. दिस इज़ हाउ वी गो फॉर द गैस एस्टिमेट्स टू कम अप विद गुड इनफ वैल्यू. एक अच्छी वैल्यू की तरफ जाते हैं बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस and various variables of the analyst that is being considered while estimating. When a guess estimate questions are asked for the size of the market, then market sizing questions come up. As I have already explained in the previous session, when we do market sizing, we go into 4 steps. That is, clarify the questions, break down the problem, solve each piece and consolidate into a final result. इस स्टेप को फॉलो करते हुए हम एक मार्केट साइजिंग करेंगे. दैट इज़ हाउ मैनी पीपल वेयर रेड इन न्यूयॉर्क ऑन अ टिपिकल मंडे. हाउ मैनी पीपल वेयर रेड, रेड कलर एक टिपिकल मंडे में कितने लोग पहन के चल रहे हैं न्यूयॉर्क में. इसकी हमें मार्केट साइजिंग करनी है. हाउ विल बी डूइंग इज, इसमें कुछ वेग टर्म्स हैं. सबसे पहला स्टेप है हम क्लैरिफाई करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स को. सब कुछ वेग टर्म्स हैं. स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क लेना है कि सिटी ऑफ न्यूयॉर्क लेना है, तो हमने क्या लिया है, सिटी ऑफ न्यूयॉर्क लिया है यहाँ पे. देन व्हाट डज वेयर रेड रियली मीन. हमारी क्वेश्चन था हमारा हाउ मेनी पीपल वेयर रेड इन न्यूयॉर्क ऑन अ टिपिकल मंडे. तो व्हाट डज वेयर रेड रियली मीन. इफ एनी पीस ऑफ क्लोथिंग ऑन पर्सन इज रेड, विल ही बी कंसिडर्ड वेयरिंग रेड? यस, will be considered wearing red. If a person wearing red goes out more than once, ज़रूरी नहीं है कि बंदा एक ही बार जाए, हो सकता है 4 बार जाए, तो क्या हम कितने टाइम्स इसको काउंट करेंगे. तो we have decided we'll count it just once. हम इसको just once ही काउंट करेंगे अगर वो 4 बार भी बाहर जाता है. फिर we try to break down the problems, identify mathematically the factors determining the number of people wearing red in New York City on a typical Monday. इसमें कैसे किया है, हमने न्यूयॉर्क सिटी की पॉपुलेशन को लिया है. देन चांसेस दैट पीपल विल रेड, इसको हमने 2 अलग पार्ट में सेगमेंट किया है. हाउ मेनी पीसेस ऑफ पीपल, पीस ऑफ क्लोथिंग पीपल वेयर, कितने लेयर्स वो पहन रहे हैं और उसमें कितनी चांसेस हैं कि वो रेड होगा. इसको हम आगे समझते हैं. देन सॉल्विंग ईच पीस, हमने पिछला लिया कि हमने न्यूयॉर्क की पॉपुलेशन किया, फिर उसके बाद जब वो रेड पहन रहे हैं कितनी लेयर्स पहन रहे हैं, उस लेयर में कितने रेड हो सकता है. यूज़ योर गुड सेंस ऑफ जजमेंट एंड एस्टिमेशन. यहाँ पे जजमेंट और एस्टिमेशन दोनों इन्वॉल्व होगा फॉर ईच पार्ट. नाउ considering New York City की population to be 20 million, right, and chances that people will wear red and chances of being one red. इसमें एक चीज़ और है जो हमने लिया था कि कितने लोग बाहर निकल रहे हैं, कितने लोग घर में हैं, कितने लोग घर से बाहर जा रहे हैं एक बार, कितने लोग 2 बार जा रहे हैं.
अगर हम पॉपुलेशन को कंसिडर करें, गोइंग होम, घर में रह रहे हैं वो 5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, दैट इज 20 मिलियन, गोइंग आउट वंस दैट इज 70 मिलियंस, एंड गोइंग आउट ट्वाइस दैट इज 25%. देन नंबर ऑफ पीसेस ऑफ क्लोथिंग पीपल वेयर, जो घर में है वो 2 पीस पहन रहे हैं, जो बाहर हैं या बाहर जा रहे हैं एक बार वो 5 पीसेस पहन रहे हैं. These are just the assumptions, whereas people who are going out can have 10 types of different clothing. It can be your mufflers, it can be your other accessories that is being carried. The chances of being red, जो घर में है हो सबका हमने assume करा है chances 10% तीनों ही condition में. Now we would be consolidating the different pieces of estimation and the data that we get, and easiest consolidating in a easiest way to follow, and it might not be necessary कि हम bottom up approach या ही follow करें. अब हमने जब 20% of population लिया तो 1 million हमारी results आ रहा है, that is sorry 20 million का 5% का 20 million लिया तो 1 million आया, 70% लिया तो 14 million आया, twice तो 5 million आता है. Then number of pieces, 2 pieces, 5 pieces and 10 pieces, फिर 10%, 10% and 10%. हम इसको सबको once we multiply it and we get this 200,000, then 7 million, 5 million in these cases, then we sum up this to get the result that is approximate 12 million people एक टिपिकल मंडे को रेड पहन रहे होंगे. दिस इज हाउ द गेस एस्टिमेट गोज. नाउ लेट्स गो इनटू अनदर एग्जांपल, दैट इज एस्टिमेट द नंबर ऑफ वॉशिंग मशीन्स इन इंडिया. हम 2 तरीके से फॉलो कर सकते हैं, दैट इज पॉपुलेशन बेस्ड डेटा से या मैन्युफैक्चरर बेस्ड डेटा से. अब मैन्युफैक्चरर बेस्ड डेटा की बात करते हैं, हो सकता है हमारे पास सप्लायर्स की इंफॉर्मेशन प्रॉपर अवेलेबल ना हो तो हम पॉपुलेशन बेस्ड डेटा की तरफ जाएंगे. और एक चीज़ और है, वॉशिंग मशीन की बात आ रही है तो वॉशिंग मशीन हमने कमर्शियल ली है कि डोमेस्टिक पर्पस के लिए ली है. तो इन दिस वील जस्ट बी कंसिडरिंग डोमेस्टिक. Considering the population of India to be 120 crores, we divide the population of India by average number of people considering 4 members in the household, that is 120 divided by 4, that constitute 30 crores. Also the fact कि अगर joint family है तो 1 washing machine per family होगी. Then हमने population को divide किया है metro tier 1, tier 2 and tier 3, assuming कि 20% of population के पास यहाँ पे हाउस होल्ड्स होंगे मेट्रो में, 15% एंड 65%. फिर हमने इनकम सेगमेंट में डिवाइड किया है तीनों सिटीज़ को, तीनों लेवल्स के बेसिस पे जो हमने लिया था इनटू पुअर, मिडिल एंड रिच, दैट इज़ 20, 60 एंड 20% ऑफ द पुअर, मिडिल एंड रिच क्लास. दिस व्हाट वी केम अप. अगर हमने इसको ग्राफ पे या चार्ट पे बनाया, then going into the penetration estimation कि जब मेट्रो टीयर 1 में पुअर % लोग नील हैं जो कि जिनके पास वॉशिंग मशीन होगी, assuming 50% and 40% penetration of washing machine in middle class and rich class and 100% in terms of rich class. Then calculating the total number of washing machines, उसके लिए हमने क्या किया है, summation of penetration into number of households इन ईच जोग्राफिक सेगमेंट लिया है. हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने जो हमारे हाउस होल्ड्स हैं 0.2 इंटू 30 विच वी गेट एज 60. 0.2 हमारा कैसे निकला है, यहाँ पे जो हमने 20% ऑफ आपका पॉपुलेशन लिया था 30 करोड़ का, 20%, 15% एंड 65%, इस टेबल से हमने रिलेट करके जब हमें ये डेटा मिलता है तो हम यहाँ पे पूरा जब हम ऐड करते हैं 3 करोड़, 1.35 करोड़ एंड 0.4 करोड़, तो टोटल नंबर ऑफ वॉशिंग मशीन्स बेसिकली इन इंडिया इज 4.7 crores. Once we have done with the market sizing, we try to find out the market share, which is also one of the important aspect. The market share of a company basically refers to the percentage of total sales that are being made by the company over a period of time, usually a year.
जो साइज़ होता है वो हमारा एब्सोल्यूट नंबर्स में निकलता है और जो शेयर होता है वो हमारा परसेंटेज फॉर्म में निकलता है। जब हम मार्केट शेयर की बात करते हैं, दैट इज़ द टोटल सेल्स ऑफ द कंपनी विच इज़ डिवाइडेड by the total sales of the market and is being multiplied by 100. Let us take the example of a beverage company that has recently launched a new alcoholic beers. Last year the company booked a sale of $50 million and calculate the market share of the company if the total market size of the non-alcoholic beverage industry is 500 million. इस केस को कंसिडर करते हुए जब हम अपनी मार्केट शेयर निकालते हैं, पहले हम इसको क्या करते हैं, हम इसको डेटा पॉइंट्स को अपने एक्सेल में लिख लेते हैं। दैट इज़ द टोटल सेल्स ऑफ द कंपनी इज़ 50 मिलियन एंड टोटल सेल्स ऑफ द मार्केट इज़ 500 मिलियन। ये हमारे वैल्यू में निकला हुआ है, हमारे की पॉइंट्स। अब हम क्या करते हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द गिवन फार्मूला दैट इज़ द टोटल सेल्स ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स ऑफ द मार्केट। जब हम इसको देखते हैं, टोटल सेल्स ऑफ द कंपनी इज़ 50 डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स ऑफ द मार्केट इज़ 500 एंड देन वी मल्टीप्लाई इट बाय 100। मार्केट शेयर हमारा जो निकल के आ रहा होता है दैट इज़ 10%. 10% is the market share of the company that was during the last year. Therefore, this is how we calculate the market share. Yes, we try to calculate how the market sizing is done of the two products, that was of the typical Monday को रेड कलर का न्यूयॉर्क में लोगों ने रेड कलर का कपड़ा पहना, एक वो किया, प्लस हमने दूसरा किया एस्टिमेटेड मार्केट वॉशिंग मशीन्स इन इंडिया. This is how basically the guess estimates are there done. This is how basically the market sizing is done along with the market share. There are more ways wherein you can do it depending on only the guess estimates and the predictive variables that are considered for calculating the market size. I hope you have understood. Thank you.